Yeah, okay, so welcome everyone. And before the starting of this video, I would like to say a few words. The first word is that this video is strictly for those people who have missed my classes or new to my classes, completely new. Further, who have no basic understanding of this higher math like calculus or matrix determinant, etc. And another thing is that those I also make this video I'm also making this video for those people who wants to revise this calculus thing as well as the matrix determinants. So if you have any questions, do let me know. And since majority of the audience is on Bengali, Hindi and English, so I am trying to make this video on English and Hindi because majority of you understand Hindi and English. So without further delay, let us start. And today's topic is functions. So I'm not going to get into the most detailed study of functions because function is a very vast chapter. So all I'm going to give you a very brief overview of how functions should behave and what kind of properties does a function have. Give some example of functions, how to evaluate those functions at certain points, and how to derive those composition of functions. After that, we will continue to limits, which will be in a different video, I think. So let us start this chapter called functions. So function is like a factory. So if you have like a factory, you enter some materials X and then it comes out as Y. So here functions will be like fx, where you put the value of x and it gives you a value y. In mathematics, a function is a rule of correspondence. So that is the definition of a function. So if I elaborate this statement, then this will be a function. It is written like this: f map x to y. We say it like this: f maps x to y is a rule of correspondence between x and y, which assigns for say not every value, assigns the points x of x with a point y of y via the rule. Since it is a rule of correspondence, y is equal to fx. This means that if we have a function f from x to y, then this function is going to take a point from the left side set, which is called the domain of the function in most of the cases, and it will give a value on the right side. For example, let me give you some examples, it will be clear. So if this is example, if from say r means real number, so all possible numbers, all types of numbers are here, they are called real numbers. R to R defined by fx is equal to x square. So this is a function. This is a function. The questions will be like this. So find f of 2, f of 3, f of 0. So we see that fx equal to x square. This means that whatever is going to be inside here, उसका square आएगा right side पे. We are going to square that term. This is the definition of the function. So f of 2 will be 2 square, which is 4. F of 3 will be 3 square, which is 9. And f of 0 will be 0 square, which is 0. See, this f is transforming 2 to 4,
3 to 9 and it transforming 0 to 0. This is the rule of correspondence. So here the left side set is R, the right side set is also R. So it is assigning every point x from R to a point which is x square of this right side wala R. Okay, so that is how function works. So function is gonna look like this fx. It takes the value x and it gives us a value y, and we write y is equal to fx. That's it. So how to evaluate a function? This is the next question. So suppose this is an exercise. Let fx is equal to 3x plus 2 by 4x minus 3. Evaluate f1. How we are going to evaluate f1? We put the value x equal to 1 on both sides of the equation. So it is basically doing like this. We put x equal to 1 in both sides of the equation. So this is our main equation. We are going to put x equal to 1. So fx is equal to 3x plus 2 by 4x minus 3. We put f1. So it will be 3 1 plus 2 by 4 1 minus 3 is equal to 3 plus 2 by 4 minus 3, which is 5 by 1 is 5. This is the value of the function. This is called the value of the function, value of f at x equal to 1. So that is how we evaluate the function. So here is an exercise for all of you to just check it. Find f2, f3, f of minus 1 for the function fx equal to x square plus 2x plus 3x minus 1 by 3x plus 1. Yeah, one thing I'll show you, f of minus 1, this is just for a hint कि कैसे किया जाता है ये सब. f of minus 1 होगा जहां जहां x है वहीं पे you just write minus 1. And you will get the answer just by calculating it. Maybe minus 1, so minus 4 by minus 2, which is 2. So 2 minus 1, which is 1, is the answer. That is how we evaluate a function. Okay, let me see what other type of things that are here. Okay, so let me see some other type of functions. Let me give some examples of functions. So examples of functions. Okay. So in examples of functions, the first function that I'd like to share is called polynomial function. Polynomial function, it looks like this. It is denoted by Pnx is equal to a0 plus a1x plus dot 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 plus an x to the power n, where an is not equal to 0. Pnx and ये जो n है ये होगा पॉजिटिव इंटीजर्स. So it is going to be natural number together with 0. इसका ऐसे भी लिखा जाता है z प्लस. z को कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, और z प्लस का मतलब है वो सारे नंबर 0 1 2 3 4 5. These are the numbers. So this is going to be the positive integers, that is including 0. मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के कलेक्शन में ये होगा. Pnx को कहते हैं हम a polynomial of degree n. This n is called the degree of the polynomial, the highest degree, the highest exponent. और ये जो an है, this an is called the leading coefficient of that polynomial.
Okay, so इसी के हिसाब से under this setup we have what is called a polynomial of degree 1 which is simply ax plus b, ऐसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ऐसे p1x. सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको हम लिखते हैं p2x जो होता है क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक. Polynomial of degree 3, it is called denoted by p3x which is ax cube plus bx square plus cx plus d, and this is called a cubic. और उसके बाद ऐसे चलता रहता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 which is p4x which is ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e which is called a quadric or a biquadratic. इनके सॉल्यूशंस एक अलग चैप्टर में होंगे, पर अभी के लिए बस इतना डेफिनेशन जान लो कि इसको पॉलिनोमियल कहते हैं. एंड इसके जो पावर है, वो जो हाईएस्ट पावर, जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 4, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, दिस हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. और उस हाईएस्ट पावर के साथ में जो कोएफिशिएंट है, दिस आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पे जो a0 a1 an वगैरह है ना, इस सब को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी डिग्री का कोएफिशिएंट. सो अगर एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल का तुम्हारा जो डिग्री है वो 4 नहीं है, वो है 5, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट एग्जिस्टेड. सो डिग्री होता है 5, और उसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो होता है लीडिंग कोएफिशिएंट. लीडिंग कोएफिशिएंट वो होगा 2. सो ये है हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला पावर, तो इसके लिए डिग्री होता है 5 और लीडिंग कोएफिशिएंट होता है 2. अब इसके बाद ही आता है, इसे पॉलिनोमियल हो गया. आफ्टर पॉलिनोमियल वी हैव दिस थिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको मॉड फंक्शन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉड फंक्शन. इट इज डिफाइंड लाइक दिस, fx, मतलब fx नहीं लिखते, उसको डायरेक्टली लिखते हैं मॉड x इज इक्वल टू, ये होगा प्लस x, मतलब सिंपली x अगर x होता है ग्रेटर देन 0, 0 इफ x होता है इक्वल टू 0, और माइनस x इफ x होता है लेस देन 0. तो इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इवेलुएट mod 2.5, mod minus 3.2 और mod of 1.1 क्या होगा. सी 2.5 इज ग्रेटर देन 0, सो इसका वैल्यू होगा x जो खुद अंदर है, मतलब 2.5. माइनस 3.2 इज लेस देन 0, सो इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ x. सो माइनस ऑफ x का वैल्यू है माइनस 3.2 विच इज बेसिकली 3.2, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1.1. द थिंग इज दैट मॉड के अंदर जो भी नंबर तुम्हें दिया जाए उसका हमेशा पॉजिटिव साइड ही बाहर आएगा. जैसे मॉड ऑफ 2 का वैल्यू आएगा 2, पर मॉड ऑफ माइनस 2 का वैल्यू वो भी आएगा 2, मॉड ऑफ माइनस 3 का वैल्यू वो भी आएगा 3, और mod of 3 वो भी आएगा 3. So it doesn't matter whatever the number you are getting inside of this mod side, it will always be the positive side of x. So ये है ट्रिक, मतलब आसानी से समझने के लिए whatever the number you are putting inside of the mod, it will always come like a positive side of the mod. मतलब उसका उस नंबर का बस पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो बस बाहर आएगा. So that is the easiest way to like remember कि मॉड के अंदर जो रहेगा उसका हमेशा पॉजिटिव वाला साइड बाहर आएगा. मतलब -2 है तो फिर +2 बाहर आएगा, मतलब आंसर आएगा. -3 है तो फिर +3 आएगा, +3 खुद है तो फिर +3 आएगा. 0 का तो कोई साइन नहीं है तो 0 रहता है तो 0 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो 0 आएगा. ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन.
the greatest integer function. So it's number 3, greatest integer function, also known as box function. अब तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे तो वो ऐसे दो फंक्शंस मिलेंगे, एक है फ्लोर एक है सील। तो उसमें से ये जो बॉक्स फंक्शन है ये सील शायद सील वाला नहीं है, ये फ्लोर वाला फंक्शन है। हाँ, ये फ्लोर वाला ज्यादा पॉपुलर है। इट इज डिनोटेड बाय दिस बॉक्स ऑफ एक्स, इज डिफाइंड बाय, इसको डिफाइंड वाला साइन कहते हैं, इट्स कॉल्ड द डिफाइंड साइन। डिफाइंड बाय ऐसे बोलते हैं कि ये डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर का मतलब होल नंबर्स वगैरह, मतलब होल नंबर्स टुगेदर विद द प्लस एंड माइनसेस, मतलब -2 -1 +1 +10, ऐसे जो होल नंबर्स होंगे प्लस और माइनस लेके, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, मतलब x को छोड़ के बड़ा वाला इंटीजर नहीं, जो भी तुम्हारा x का वैल्यू है उससे जस्ट पहले वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा वो। सो एग्जांपल के लिए देखो कि अगर 2.3 तुम का उसका बॉक्स का वैल्यू निकालना चाहते हो तो पहले नंबर लाइन पे देखो 0 1 2 3। अब 2.3 हो ना हो यहीं पे लाई कर रहा है, और 2.3 के जस्ट आगे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब काफी सारे इंटीजर है, 1 है 0 है, यहाँ पे -1 है -2 है, काफी सारे इंटीजर्स है, उसमें से सबसे बड़ा वाला जो 2.3 के जस्ट आगे है वो है 2। सो इसका आंसर आएगा 2। अगर ट्रिकी पार्ट इज, अगर 2.3 की जगह -2.3 का तुम्हें बॉक्स निकालना पड़े तो तुम वैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करो, फिर 0 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे -2 यहाँ पे -3। अब -2.3 यहीं पे कहीं पे लाई करेगा, -2.3, -2.3 के जस्ट पहले कौन सा वाला इंटीजर है वो देखो, वो है -3, तो इसका आंसर आएगा -3। ऐसे ही अगर तुम -2.1 कर देखो तो -2.1 यही कहीं पे लाई करेगा, यही कहीं पे -2.1, क्योंकि उसके बाद 2 आता है, तो -2.1 के आगे जस्ट आगे जो इंटीजर है वो है -3, तो वो भी आएगा -3। ऐसे अगर हम 1.5 बस पॉजिटिव 1.5 का देखें तो फिर देखो ये है 1 ये है 2, यहाँ पे आता है 1.5, उसके जस्ट आगे जो इंटीजर है वो है 1, जिसका आंसर आएगा 1। ऐसे निकालते हैं बॉक्स फंक्शन के वैल्यूज। ओके, ऐसे अगर तुम लोगों को मैं होमवर्क दे दूं कि इसका ट्राई करो कि फाइंड बॉक्स ऑफ -पाई एंड बॉक्स ऑफ ई। यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 3.14 और ई का वैल्यू होता है 2.718। Now this is left as an exercise to all of you, मतलब सॉल्व करके देखो। अगर ठीक से करोगे, मैं बता नहीं रहा हूँ कैसे आ रहा है, पर इसका आंसर आएगा 4 -4, इसका आंसर आएगा 2। एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना कि आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है साइनम फंक्शन, कुछ लोग इसे सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं। साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन हमेशा नंबर्स का साइन दिखाता है, इसको लिखते हैं ऐसे है SGN ऑफ x, ये होगा +1 अगर x होता है ग्रेटर देन 0, -1 अगर x होता है लेस देन 0। सो साइनम ऑफ 1.5 का आंसर आएगा +1 और साइनम ऑफ -10 का आंसर आएगा -1, क्योंकि ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। सो 1.5 x से ग्रेटर देन 0 है तो फिर वहां के लिए आएगा +1, और -10 है लेस देन 0, सो उसके लिए आएगा -1, इसीलिए -1। ये है साइनम फंक्शन। सो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि साइनम ऑफ 0 क्या है, वो होगा अनडिफाइंड। द रीजन इट इज अनडिफाइंड बिकॉज इस डोमेन में मैंने कहीं पे भी x इक्वल टू 0 का कोई आउटपुट यहाँ पे दिया ही नहीं, तो फिर उसी प्लेस पे वो हो जाता है अनडिफाइंड, इसीलिए साइनम ऑफ 0 हमेशा होगा अनडिफाइंड। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किसी भी एक बड़े फंक्शन के अंदर, एक एग्जांपल है, there is a bigger function which is x square plus 42 to the power x plus sinum of x। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़े 1, तो फिर तुम करोगे 1 square plus 2 to the power 1 plus sinum of 1। so 1 square is 1, 2 to the power 1 is 2, और sinum of 1 होता है +1, जिसका मतलब होता है +1। so 2 plus 1 is 3 and 1 is 4। but if you want to find f0,
देन 0 स्क्वायर तो हो गया, 2 to the power 0 वो भी डिफाइंड है, पर साइन आर्म ऑफ 0 इज अनडिफाइंड. साइन आर्म ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, सो वी से f of 0 is undefined. बस एक फंक्शन के अनडिफाइंड होने से पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल. But instead of that, if you get questions like f of -1, yes, then you can also do all of your regular work and तुम्हें आंसर ऐसे ही मिल जाए. मतलब ये हो गया 1 + 1/2 - 1, so which is 1/2. ये करते हैं. साइन ऑफ -1 होता है -1, क्योंकि अंदर वाला जो है वो लेस देन 0 होता है, इसीलिए साइन ऑफ का वैल्यू आता है -1. Okay, after sine of function we have all sorts of trigonometric functions, but I'm not going to elaborate them. So they are like trigonometric functions. Trigonometric functions में है sin function, cos function, tan function, cosec function, sec function और cot function. ये 6 है. They have their definitions, you can find it on any books, but I'm not going to elaborate them because ये scope के एकदम बाहर है. अगला वाला फंक्शन जो है वो है log function, which also I'm not going to state for a very long period of time. बस इतना कहना चाहता हूँ कि log function कुछ ऐसा दिखता है कि अगर y is equal to a to the power x है, if y और x में से ये रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि then लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a वो होता है x. और अगर तुम्हारे पास इफ यू हैव लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x, देन यू कैन से y होगा a टू द पावर x. कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज है फॉर दोज हु डू नॉट नो अबाउट लॉगरिथम. पहला फॉर्मूला है कि लॉग का 1 बेस कुछ भी हो जाए वो हमेशा 0 आएगा और बेस हमेशा नॉन जीरो होता है. दूसरा है log a टू द बेस b प्लस log बेस तुम c ले लो, सो log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab. log में अगर a टू द पावर m रहता है तो फिर वो m log ab हो जाएगा. मतलब एक्सपोनेंट वो है तो बाहर आ जाए. log a माइनस log b बेस सेम होना चाहिए, वो होता है log a बाई b. और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैं बस कुछ ही यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. log a टू द बेस a इज 1 एंड मेनी मोर. log टेबल से हम ऐसे logs को इवेल्युएट कर सकते हैं. there are mainly two type of logs that are famous. one is called the natural logarithm, जो तुम्हारे कैलकुलेटर्स में ln कह के तुम्हें मिलेगा, वो होता है log टू द बेस e के हिसाब से. और दूसरा है ऑर्डिनरी लॉगरिथम, जो तुम्हें log कह के कैलकुलेटर में मिलेगा, उसका मतलब है log टू द बेस 10. सो यही है दोनों डिफरेंस. इन दोनों के कन्वर्शन फॉर्मूलाज भी है, बट दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास टू फंक्शन, सो आई एम जस्ट लिविंग दिस पार्ट राइट हियर. अगला वाला फंक्शन जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तुम्हें जो मिलेगा वो एक कांस्टेंट मिलेगा e, इसे कहते हैं ऑयलर कांस्टेंट. इस कांस्टेंट का वैल्यू मैंने अभी बताया 2.718281828. ये एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर का मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नेवर रिपीटिंग है, मतलब पाई की तरह. पाई को सभी कहते हैं 22/7, बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर. और यहाँ पे जो e है वो भी इरेशनल नंबर है. e is mainly used in logarithm. लॉगरिथम पे बहुत इस्तेमाल होता है इसका. और ये जो फंक्शन है e टू द पावर x, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल मैप. इस e का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट इस लिमिट के जरिए होता है. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n. आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव ए कॉमन आइडिया, मतलब एक थोड़ा सा आइडिया तो होगा लिमिट के बारे में. बट अभी मैं ये लिख रहा हूँ कि
बाद में जब तुम्हारे कैलकुलस पार्ट में आए तो कैलकुलस में लिमिट पे ये लिमिट तुम्हें मिलेगा। दिस इज जस्ट, इसको क्या बोलते हैं जो मूवी में करते हैं वो होता है कि ये एक कैमियो है जो भी दे रहा हूँ, बट यू विल फेस द लिमिट इन कैलकुलस, वो भी लिमिट वाले चैप्टर पे। लिमिट वाले चैप्टर पे इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसके लिए ये सब पढ़ना जरूरी था, इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन का मतलब है हम एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन को कॉम्पोज करने वाले हैं। सो इफ यू हैव एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स and gx is equal to for say x square plus 1, तो f of g of x ये क्या होगा? ये f of g of x, इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, हम कंपोज करेंगे एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन। पहले मैं अलग अलग कलर से लिखता हूं, ठीक है? सो वी हैव एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब रेड कलर से लिख रहा हूं कि जी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हम निकालेंगे एफ ऑफ, अब जी एक्स का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? उसका मतलब ये हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एफ के अंदर जो रहता है वही ई के सर में रह रहा है। एफ के अंदर है अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ई के सर में भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है हमारा एफ ऑफ जी एक्स। दिस इज आवर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब उसी तरह से अगर g ऑफ एफ एक्स हमें निकालना पड़े तो फिर हम g ऑफ एफ एक्स का मतलब है e टू द पावर x। अब g ऑफ समथिंग का मतलब है उस समथिंग का स्क्वायर प्लस 1। अब उस समथिंग के जगह है e टू द पावर x, सो ये होगा e टू द पावर 2x प्लस 1। सो एक और बार दिखा रहा हूं, देखो कि अगर हमारे पास है, इफ वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x and gx is equal to x square plus 1, then to evaluate f of g of x, we simply write it as gx का मतलब x square plus 1 और f of x का मतलब e to the power x, so f of x square plus 1 का मतलब e to the power x square plus 1। Similarly g of fx वो होगा, g of fx का मतलब होता है e to the power x, यहाँ पे लिखा हुआ है fx e to the power x है, तो हम उसी की जगह उसका वैल्यू बैठा रहे हैं, बता दिया उसका वैल्यू। अब g ऑफ e to the power x का मतलब है, g ऑफ x का मतलब है x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखो g ऑफ x का मतलब है x स्क्वायर प्लस 1, तो g ऑफ e to the power x इसका मतलब होगा e to the power x का स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया e to the power 2x प्लस 1। ऐसे होता है फंक्शंस का कंपोजिशन। अब हमें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि अगर एफ एक्स है तुम्हारा 1 बाई एक्स प्लस 1 और जी एक्स है तुम्हारा 2 टू द पावर x, तो फिर फाइंड करो एफ ऑफ जी ऑफ 0। अब इसे निकालने के लिए तुम ऐसे करोगे कि पहले एफ ऑफ जी ऑफ x फाइंड करना, वो होगा एफ ऑफ 2 टू द पावर x, क्योंकि जी एक्स का वैल्यू ही है 2 टू द पावर x। अब एफ एक्स का वैल्यू है 1 बाई एक्स प्लस 1, एक्स के जगह होगा 2 टू द पावर x प्लस 1। अब तुम निकालो एफ ऑफ जी ऑफ 0, which is 1 by 2 to the power 0 plus 1 is equal to 1 by 1 plus 1। Remember, something to the power 0 is 1। अगर ये समथिंग भी गलत है, एक्चुअली एनीथिंग टू द पावर 0, जब तक ना वो एनीथिंग अनलेस वो a इक्वल्स टू 0 हो, अनलेस a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये तब तक होगा जब तक a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब तक उसके सर पे 0 रखने से 1 आएगा।
So anything to the power 0 is 1 अगर वो anything 0 ना हो वरना undefined हो जाएगा. Remember 0 to the power 0 is undefined. So ये आ गया हमारा 1/2. एक और एग्जांपल देता हूं. fx is equal to x cube plus 3x plus 1 और gx हो गया हमारा x plus 1. So फाइंड करो अब तुम f of g of x. अब f of g of x का मतलब है x plus 1 और fx का मतलब है f के अंदर जो रह रहा है x plus 1 उसका क्यूब plus 3 times x plus 1 plus 1 which is x plus 1 cube plus 3x plus 3 plus 1 which is x plus 1 cube plus 3x plus 1. Okay. So this is the kind of thing you will face in functions, and if you have any questions feel free to let me know. And for those of you who are new to this function, I recommend everyone to go for and study the book of SK Mappa Real Analysis. It's a very friendly book. It's available online also. You just have to search for it. SK Mappa Real Analysis. It is an UG level book, undergraduate level book, and it contains many applications of this differentiation and things like that. There are many problems in this book, so do let me know if you face any problems regarding functions. In the next video, I'll be dealing with implicit explicit functions possibly, and after that we will go to the chapter called limit and a little bit of continuity. After that, differentiation will be I hope it will be available to all of you. And feel free to reach out to me anytime. Thank you very much.